Good morning, students. Welcome to TSN Online Education Point for class 8th. Our today's topic is Female Reproductive System, chapter number 9th, Reproduction in Animal. Okay, students, in previous video we discussed about male reproductive organ. We observe the structure of male reproductive organ in human, and we studied about human sperms. Our today's topic is female reproductive organ. So the female reproductive organ are a pair of ovaries. Oviduct is called fallopian tube, and the uterus. The ovary produce female gamete called ova or eggs. In human being, a single mature egg is released into oviduct by one of the ovaries every month. Uterus is the part where development of babies take place. Like the sperm and egg is also a single cell. Means students, पैराग्राफ में ये बता रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक सिंगल पेयर ओवरी प्रेजेंट होती है. ओवरी एक सिंगल पेयर ओविडक्ट प्रेजेंट होती है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं. फैलोपियन ट्यूब जो है वो फर्टिलाइजेशन की पोजीशन है जहाँ स्पर्म्स और ओवम फ्यूज़ होते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. फीमेल गैमेट को हम ओवा कहते हैं जिसे एग या ओवा कहते हैं. ये ओवरी में प्रोड्यूस होकर ओविडक्ट्स के थ्रू रिलीज होता है. और स्पर्म की तरह ओवम भी एक सिंगल सेल है. डायग्राम से आपको शो हो रहा है ह्यूमन ओवम जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है. इसकी स्ट्रक्चर स्पर्म की कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी होती है. नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन. द स्टेप in the process of reproduction is the fission of a sperm and an ovum. When sperm come in the contact with an egg, one of sperm may fuse with the egg. Such fission of the egg and the sperm is called fertilization. स्टूडेंट्स, स्पर्म और ओवम का जो फिजन होता है ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहलाता है. और फर्टिलाइजेशन की पोजीशन जो है वो ओविडक्ट मींस फैलोपियन ट्यूब होती है जहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ह्यूमन में होती है. ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. This result in the formation of an fertilized egg or zygote. मीन्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से जायगॉट का फॉर्मेशन होता है जो एक सिंगल सेल है. मीन्स एक सिंगल सेल फ्यूज होके जायगॉट का फॉर्मेशन करती है. You know that the zygote is the beginning of a new individual. इस जायगॉट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. The process of fertilization in the mating of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. So the new individual inherits some characters from mother and some from father. As you know that students, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आ जाती हैं और ये वेरिएशंस जो है कुछ कैरेक्टर मदर से आते हैं, कुछ कैरेक्टर फादर से आते हैं. Look at your brother and sister. See if you can recognize some characters in them similar to those of your father and mother. Fertilization which take place inside the female body is called internal fertilization. Very important definition. Internal fertilization occurs in many animals including human, cow, dogs, hens. मीन्स फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर मदर की फीमेल की बॉडी में हो रही है दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. आपको ह्यूमन, काऊ और डॉग में इसका एग्जाम्पल दिखता है. ओके स्टूडेंट्स, you will be surprised to know that in many animals fertilization take place outside the body of female. In these animals fertilization take place in water. As you know that some animals are aquatic. कुछ animals जो aquatic होते हैं, कुछ amphibians होते हैं. उनमें sperm और ovum का जो fission होता है वो outer medium में होता है, means water में होता है. So that is called external fertilization. During spring
or rainy season, frogs, trouts move to pond and slow flowing stream. When the male and female come together in water, the female lays hundred of eggs. Unlike hen's eggs, frog eggs not covered by a shell and its very delicate a layer of jelly holds of egg. Means बहुत सारे जो eggs होते हैं वो jelly से attach होते हैं. As the eggs are laid, the male deposits sperms over them. Each sperm swims randomly in water with the help of long tail. The sperms come in the contact with the egg. This result is in fertilization. The type of fertilization in which the fission of male and female gamete take place outside the body of female is called external fertilization. Very important definition. अगर fertilization की process mother और female ऑर्गेनिज्म के बाहर की ओर हो रही है, एक्सटर्नल मीडियम में हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एग्जांपल इसके पीसीज हैं और एम्फीबियंस है. कुछ एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रॉग, टॉड्स, पीसीज में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. Fertilization result in the formation of zygote which begins to develop into an embryo. The zygotes divide rapidly to give rise to a ball of cells. The cells then begin to form groups that development into different tissues and organ of body. This developing structure is termed as embryo. आपको पता है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जायगोट है, जायगोट में रैपिडली माइटोसिस डिवीज़न होते हैं. इन डिवीजन्स के रिजल्ट से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम आगे जाके एम्ब्रियो भी कहते हैं. और द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. ये जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस की वॉल पे अटैच हो जाता है, फिर इसका आगे डेवलपमेंट होता है. द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस. इन इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज एक्सेट्रा. तो स्टूडेंट्स आपको डायग्राम में शो हो रहा है जो ओवरी है, ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन हो चुका है. ये ओवम जो है ओविडक्ट मीन्स फैलोपियन ट्यूब से जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ था वहाँ से यूट्रस की ओर मूव करता है और यूट्रस की वॉल पे अटैच हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. This stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called fetus. Very good definition of fetus is जब हमें एम्ब्रियो में अलग अलग बॉडी पार्ट्स इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं देन हम एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं. When the development of the fetus is complete, the mother gives the birth to the baby. जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो मदर उसे जन्म दे देती, बर्थ हो जाता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस ऑल्सो, बट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन. आपको पता है क्या हैंस ह्यूमन की तरह उसे बॉर्न करती है, वो एग ले करती है. ओके. सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote divides rapidly and travel down to the oviduct. It is travel down many protective layers. उस पर layers का formation हो जाता है. The hard shell that you see in hen's egg is such protective layers. ये जो उसकी जो outer parts होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से बने होते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है. आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द hen फाइनली lays the egg. The embryo takes about 3 weeks to develop into chicks. You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. Did you know that development of chicks takes place inside the eggshell during this period? After the chick is completely developed, it bursts open the eggshell. जब completely वो hatch हो जाता है तो जो न्यू बॉर्न है वो बाहर की ओर आ जाता है. इन एनिमल विच अंडरगोज external fertilization, development of embryo take place outside the female body. The embryo continue to grow within the egg
covering. After the embryo develop the egg hatch, you must have seen numerous tadpoles swimming in the ponds or stream. तो ये एम्फीबियंस का एग्जाम्पल आपको बुक में दिया गया है, प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म जब रिलीज होते हैं तो जेली से जो अटैच ओवम है उससे अटैच हो जाते हैं, एग से अटैच हो जाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में तो ऐसे होता है। देन इनके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद ये जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो बनता है, देन इसका डेवलपमेंट होता है और उसके बाद काफ़ी सारे टेडपोल्स आपको शो होते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विविपेरस एंड ओविपेरस। कुछ एनिमल्स जो हैं वो एग लेइंग करते हैं और कुछ एनिमल्स जो हैं अपने जैसे चाइल्ड को न्यूबॉर्न करते हैं, तो दे आर कॉल्ड विविपेरस एंड ओविपेरस। वी डिस्कस अबाउट विविपेरस एंड ओविपेरस in this video. We have learned that some animals give birth to young ones, while some animals lay eggs which later developing into young ones. The animal which give birth to young ones is called viviparous. जो eggs देते हैं, जो अपने जैसे एनिमल्स को बर्थ देते हैं यंग वंस को, दैट इज कॉल्ड विविपेरस. दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस. वेरी गुड. जो एनिमल्स होते हैं अगर वे एग ले करते हैं देन दैट इज कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स. द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर डिफरेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस. सो कुछ स्नेक्स जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, कुछ स्नेक्स विविपेरस होते हैं, कुछ फिशेस विविपेरस होती है, कुछ फिशेस ओविपेरस होती है. सो ह्यूमन क्या होगा? ह्यूमन विविपेरस होगा, मीन्स अपने जैसे यंग वंस को डेवलप करता है. ओविपेरस मीन्स आप देखते हैं हैंस जो है वो ओविपेरस है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.